Hello everyone, welcome to my channel Shasur Classes Igniting a Passion for Learning. In this channel, I will be teaching for all students from class 6 to class 12, Karnataka State Board, CBSE Board, ICSE Board and even etc. boards. I will be covering the full chapter, example problems, exercise problems and also the very important questions. In this video, I will be going to give you the complete detailed information about first language Hindi for class 10 Karnataka State Board SSLC students. In this session, I am going to show you each and every topic and each and every area from where how the questions are going to come for this academic board exam. And this is nothing but the first language Hindi passing or scoring package 2021 as per the reduced revised syllabus Karnataka State Board. I am going to explain each and every topic in detail unit wise. Hope you all will take the advantage of this video to understand and learn the questions and answers easily. Subscribe to my YouTube channel Shasur Classes and click the bell icon to not miss any further videos from our institute. Okay, let's begin. First language कन्नड़ा. तमाम बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज हम फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी दैट इज़ प्रथम भाषा हिंदी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ये मॉडल पेपर 1 है. रिवाइज्ड रेड्यूस सिलेबस के हिसाब से इस फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी प्रथम भाषा हिंदी को आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं. और मैं इस तमाम बच्चों को ये गुजारिश करता हूँ कि आप पूरा वीडियो कंप्लीट मुकम्मल तरीके से आपको देखना पड़ेगा. आपको कंप्लीट वीडियो पूरा वीडियो और मेरी बात आपको सुनना है और उसके बाद में आपको कुछ भी चाहिए तो आप लिख सकते हैं. ओके, और ये वीडियो जो हम दिखाने जा रहे हैं ये आकर रेगुलर फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है. इसका मतलब ये होता है कि इस बार जो फर्स्ट टाइम एसएसएलसी एग्ज़ाम कर्नाटका बोर्ड एसएसएलसी एग्ज़ाम को जो बच्चे लिखने जा रहे हैं, जो छात्र लिखने जा रहे हैं, वो ये आकर उनको दिखाया जा रहा है. और जो भी छात्र फेल हो चुके हैं, जैसे कि लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं या एक या 2 या 3 बार ऑलरेडी एग्ज़ाम लिख चुके हैं, उनको ये अप्लाई नहीं होगा. ये रिवाइज सिलेबस उनको अप्लाई नहीं होगा. उनको कम्प्लीटली पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा. ओके, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी कुल मिलाकर आपको अवधि 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा. दैट इज़ 3 hours 15 minutes दिया जाएगा. और सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 06H. H का मतलब हिंदी है 06 और टोटल मार्क्स आपको 100 दिए जाएंगे. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಂದು ಬರೀ ಫ್ರೆಶರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ರಿವೈಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಓದಿದ್ರು ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 1. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಗುಡ್. ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್, ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ओके, नाउ लेट वी कम फॉर फर्स्ट मेन. अब हम फर्स्ट मेन को देखने के लिए जा रहे हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं. सही विकल्प चुनकर क्रमाक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए. दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन 1 question and 4 options. So what you are supposed to do is you have to read the question and which is the correct answer for the given statement. You have to find the answer. After that you should write the question number, option number and even the answer. Example, let we see question number 1, option B is the answer. Gayak, Gaika is the answer. Then what you can do is question number 1, option B, Gaika. You have to write this much. आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है. आपको क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन के साथ एक गायिका को भी लिखना पड़ेगा. ओके, गुड. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज गायक शब्द का विलोम रूप है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द है. इसमें से कौन सा बहुवचन शब्द है आपको
ढूंढ के लिखना पड़ेगा, आपको चूज करके लिखना पड़ेगा. विच इज द बहुवचन शब्द इन दिस, यू हैव टू फाइंड एंड यू शुड राइट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. जय शब्द का विलोम रूप है. जय शब्द का विलोम रूप, दे आर आस्किंग विलोम रूप. आउट ऑफ दिस 4 यू हैव टू फाइंड विच इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 4. निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. इन दिस विच इज द प्रेरणार्थक रूप, इसमें से कौन सा प्रेरणार्थक रूप है, आपको चूज करके लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. रास्ता शब्द का पर्यायवाची शब्द है. विच इज द पर्यायवाची शब्द, यू हैव टू फाइंड द आंसर. डन चिल्ड्रंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. एज यू कैन सी हियर, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मुहावरे का अर्थ क्या है? You need to find the answer. As you can see here children, this first main carries 6 questions, right? Each question carries 1 mark, total 6 marks. आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं, हर प्रश्न को 1 अंक मिलेंगे, मतलब कि 1 मार्क आपको मिलेंगे. कुल मिलाकर 6 मार्क्स मिलेंगे इस फर्स्ट मेन से. ओके, एंड नेक्स्ट कमिंग बैक टू सेकेंड मेन, एज यू कैन सी हियर, प्रथम 2 शब्दों में सूचित संबंध के अनुरूप तीसरे शब्द से संबंधित शब्द लिखिए. दे हैव गिवन 1 एंड दे हैव गिवन मे बी मीनिंग और ऑपोजिट, या कुछ भी दिए गए. इस ये जो दिया गया है शब्द, उसी तरह से ये शब्द का भी अर्थ आपको लिखना पड़ेगा. ओके, हियर टोटल 4 क्वेश्चंस आर गिवन. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, टोटल 4 मार्क्स. डन. नेक्स्ट मेन, थर्ड मेन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए. दे हैव गिवन हियर टोटल 7 क्वेश्चंस. आपको 7 प्रश्न दिए गए हैं, हर प्रश्न को आपको 1 अंक मिलेंगे. टोटल 7 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं. यू कैन स्कोर इजीली 7 मार्क्स फ्रॉम दिस मेन. टोटल 7 क्वेश्चंस आर गिवन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. एज यू कैन सी हियर द क्वेश्चंस आर ऑन द स्क्रीन. डन, गुड. नेक्स्ट फोर्थ मेन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए. यू हैव टू राइट द आंसर 2 to 3 सेंटेंसेस. आपको 2 या 3 वाक्यों में आपको लिखना पड़ेगा. हर प्रश्न को आपको 2 मार्क मिलेंगे. कुल मिलाकर आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको 20 अंक मिलेंगे. सो टोटली दे हैव गिवन 10 क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड यू कैन स्कोर 20 मार्क्स फ्रॉम दिस क्वेश्चंस. एज यू कैन सी हियर द क्वेश्चंस आर ऑन द स्क्रीन. Done. नेक्स्ट फिफ्थ मेन, निम्नलिखित लेखक अथवा कवि का परिचय दीजिए. इट मीन्स इन कन्नड़ा वी कॉल दिस एज कवि परिचय. ओके, इन हिंदी कवि का परिचय आपको देना पड़ेगा. डॉक्टर इकबाल, नेक्स्ट मन्नू भंडारी. हियर दे हैव गिवन 2 कवि परिचयस. आपको 2 कवि परिचय दिए गए हैं. हर कवि परिचय को आपको 3 अंक मिलेंगे, तो 2 कवि परिचय से आपको 6 अंक मिलेंगे. दे हैव गिवन 2 कवि परिचयस इन विच ईच कवि परिचय you can score 3 marks and 2 कवि परिचयs they have given, so easily you can score 6 marks from this main. Okay, sixth main, चंद महाचानकर लक्षण बताइए. Okay, this main carries 3 marks. One question 3 marks, totally you can score 3 marks. आपको इस एक्सरसाइज से, इस मेन से आपको 3 अंक मिलेंगे. नेक्स्ट सेवेंथ मेन, अलंकार पहचान कर लक्षण बताइए. इसमें अलंकार आपको ढूंढना है और उसका लक्षण बताना है. इससे आपको 3 मार्क मिलेंगे. फ्रॉम दिस मेन यू कैन स्कोर 3 मार्क्स. नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए. इसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं. हर प्रश्न से आपको 3 अंक मिलेंगे. कुल मिलाकर आपको 12 अंक आप ले सकते हैं. 4 questions, each question carries 3 marks and totally you can score 12 marks from this main. Next, ninth main, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. 4 to 5 sentences. In 4 to 5 sentences you have to write. Each question carries 3 marks and you people can score 9 marks from this main. इस मेन से आपको हर प्रश्न को 3 अंक मिलेंगे. 3 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आपको 9 अंक मिलेंगे. नेक्स्ट, निम्नलिखित पद्यांश की
पूर्ति कीजिए. They have given the poem and you have to fill this. अथवा they have given 2 paragraphs. Out of these 2 paragraphs you should write any one. So easily you can score 4 marks from this main. You can see here, पैदा कर जिस dash 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 स्वजीवन सारा अथवा जग में सुख dash को गले लगाना. Okay, you have to fill this. Next 11th main, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए. You have to write the summary of this. This main carries 4 marks. They have given अथवा. अथवा means they have given 2 questions. You can have a choice. आपको 2 प्रश्न दिए हैं, इसमें से कोई एक का आप आंसर दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं. 12th में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए. 8 to 10 sentences. In 8 to 10 sentences you are supposed to write. So totally 2 questions they have given and you can get from each question 4 marks and total 8 marks. आपको 2 प्रश्न दिए हैं, हर प्रश्न से आपको 4 अंक मिलेंगे. हर प्रश्न से आपको 4 अंक मिलेंगे. कुल मिलाकर आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे. You can see here 1 question they have given अथवा 1 more question. Okay. इसका मतलब यह होता है ये 2 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं. Out of these 2 questions you can answer any one. Again question number 42, they have given 2 questions, in that you can answer any one. Next 13th में गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. You can read this passage and you can answer this. Total 4 marks you can score from this main. 2 questions 4 marks. 2 प्रश्न दिए हैं, आपको ये कंप्लीट पैराग्राफ पढ़कर इससे आप 4 अंक निकाल सकते हैं. 14th में निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए. लेटर राइटिंग. दे हैव गिवन 2. यू कैन आंसर एनी वन आउट ऑफ दिस. नेक्स्ट 15th में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 12 या 15 वाक्य में निबंध लिखिए. दैट इज एसे. ओके, यू हैव टू राइट द निबंध. आउट ऑफ दिस 2 यू कैन आंसर. ओके, दैट इज पर्यावरण की रक्षा, हमारे राष्ट्रीय पर्व. ओके, किसी एक विषय पर एनी वन. दे हैव गिवन ए चॉइस अगेन हियर. यू कैन आंसर एनी वन. टोटल 5 marks you can score from this main. If you have liked our video, do not forget to click the like button and comment below how was this class and also what video you want me to make next. You can let me know children. आप इस चैनल को लाइक कीजिए. अगर से आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए हुए कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से आपको क्या लाभ मिला है वो आप बता सकते हैं. और हमारे अगले वीडियो में हम क्या बनाना चाहिए आपको क्या ज़रूरत है आप बता सकते हैं. उसके लिए हम एक नया वीडियो बनाकर आपको पेश करेंगे. ओके, वी विल बी गोइंग टू गिव यू ऑल. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह सर क्लासेस एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर ऑल द फ्रेंड्स. राइट, आप जितना चाहते हैं उतना आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपको जितना लाभ मिला है उसी तरह से दूसरों को भी लाभ मिल जाएगा और दूसरों को भी पता चलेगा कि इस बार फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर किस तरह से आएगा और हमारे को किस तरह से तैयारी कर सकते हैं. तो इसलिए आप दूसरों को भी बताइए कि सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे चैनल को यूज़ कीजिए. आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलें बोलकर हम आपको शुभकामनाएं देंगे. विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक. कीप वॉचिंग. डू वेल.